Hello everyone, welcome back. So with this lecture we will be finishing our topic trigonometry. Okay, in the last lecture we have solved some good questions on trigonometry. Now today we will have more questions, and with this lecture, the chapter is completed. So without wasting time, let us start with the very first question. Okay, see question number 1. See, this question is, in this question we are given value of an expression, and using that expression we have to find the value of another expression. For example, if sine theta plus cos theta is root 3, this expression is given to us. Okay, and what we have to prove? We have to prove that tan theta plus cot theta is equals to 1. Prove that uh, tan theta plus cot theta is equals to 1. Okay, so get ready for solving the first question. See, solution. Now, students, first of all, let me write the expression which is given. Sin theta plus cos theta is equal to root 3. This expression is given. Okay, and I'll be using this expression only. Okay, now students, how to start? How I can convert sin theta plus cos theta into tan theta and cot theta? Students, the first thing comes into mind is squaring both the sides. If I square in the both sides, sin square theta plus cos square theta will become 1, and I'll be getting the value of sin theta cos theta. Then we will think how we will convert that into in the tan theta plus cot theta. So let me start with the squaring both the sides. Squaring both sides. Squaring both sides. Okay, see, if I take whole square in both sides, so what expression I am gonna get? I am gonna get sin theta plus cos theta whole square, and it's equal to root 3 square, and root 3 square is what? 3. Okay, now let me expand this bracket with the identity a square plus b, a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square. Okay, so it's going to be sin square theta plus 2 sin theta cos theta plus cos square theta. Clear? Is equal to 3. Now see, sin square theta plus cos square theta is 1. So we get 1 plus 2 sin theta cos theta is equals to 3, or I may write the value of 2 sin theta cos theta is 2. Okay, because this one will go in the right hand side, so I will be getting the value of 2 sin theta cos theta is 3 minus 1 is 2. So the value of sin theta cos theta is what? 1. The value of sin theta cos theta is 1. Now students, यहाँ तक तो हमने सोच लिया, ठीक है, यहाँ तक हमने कुछ नहीं करा है, दोनों साइड स्क्वायर करा है और इस एक्सप्रेशन तक आ गए। अब इसके बाद सोचना कुछ ऐसे है कि कैसे हम यहाँ से tan थीटा प्लस cot थीटा वाली फॉर्म अचीव करें। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में जैसे अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया और अगर आप अटके, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच कुछ ऐसे होनी चाहिए कि हम जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसको देखें एक बार। देखो, एक बार हम रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट में हमको चाहिए क्या एक्चुअली, है ना, ये रफ वर्क है, रफ वर्क, ठीक है ना। सी, tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा को अगर मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करता तो ये बनता साइन अपॉन कॉस, और कॉट को अगर मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करता तो ये बनता कॉस अपॉन साइन, ठीक है। नाउ अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेता कॉस थीटा साइन थीटा को, तो मुझे क्या मिलता? मुझे मिल जाता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो ये बनता 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखा जाए तो जो tan थीटा प्लस cot थीटा है वही cos थीटा sin थीटा है। ओके, और sin थीटा cos थीटा 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा है, और 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा तो मेरे पास है। देखो, मेरा जो रिजल्ट है मैं उससे 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा तो निकाल ही सकता हूँ, दोनों साइड sin थीटा cos थीटा से डिवाइड करके, तो बस हो गया काम। दैट्स व्हाट वी वांटेड। तो इस तरीके से आपकी क्या अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, कि हम कैसे सोचें, कैसे एग्जाम के अंदर दिमाग लगाएं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। चलिए, तो लेट मी solve this question completely. See,
sin theta cos theta was equal to 1. Okay, now dividing both the sides by sin theta cos theta. मैंने इस इक्वेशन के दोनों साइड sin theta cos theta से डिवाइड कर दिया. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, या यूं समझ लो sin theta cos theta को अपने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय sin theta cos theta. अब ऐसा ही क्यों करा वो आपने देख लिया, क्योंकि हमको जो रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये स्टेप किया गया है. ठीक है, नाउ अगर मैं दोनों साइड sin थीटा cos थीटा से डिवाइड करता हूँ. अच्छा, मैं एक काम करूँ, मैं इस 1 को इधर इस तरफ लिख लूँ लेफ्ट हैंड साइड में, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे. मैंने 1 को इस तरफ लिख लिया और ये sin थीटा cos थीटा से जब sin थीटा cos थीटा में डिवाइड करा तो जो 1 आया वो मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया. दैट्स नॉट अ बिग डील. अपन ने साइड चेंज कर ली. ठीक है, LHS की जगह RHS लिख लिया, RHS की जगह LHS लिख लिया. ठीक है ना, ऐसा तो कर सकते हैं हम. नाउ दो चीजें इक्वल है एक्चुअली. सी, in the place of this 1 which is in numerator, can I write sin square theta plus cos square theta? Now why I am writing this, I told you. Okay, why I am writing this? Because I want tan theta plus cot theta. This is only possible when I get this expression. So sin square theta plus cos square theta, and in the denominator it is sin theta cos theta is 1. Now what will be the next step? The next step is going to be सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर, बिकॉज पहले हमने एलसीएम लिया था, ध्यान है, अभी लिया था हमने एलसीएम, तो अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे डिनोमिनेटर को. तो जैसे ही मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को सेपरेट करता हूँ, सी व्हाट आई विल बी गेटिंग साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस हियर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, and it's going to be equal what, 1, equal to 1. Now see, 1 power of sin theta is cancelled out, here also 1 power is cancelled out. So I guess यही लिख लेते हैं रिजल्ट. ओके, रिजल्ट आ गया sin theta अपॉन cos theta. देखो sin theta अपॉन cos theta बचा, क्योंकि एक पावर तो कैंसिल हो गई, तो बस मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट. sin theta अपॉन cos theta बन गया tan theta, cos theta अपॉन sin theta बन गया क्या, cot theta. So the value of tan theta plus cot theta is 1. Hence proved. यही तो हमको रिजल्ट प्रूव करना था, रिजल्ट शो करना था, हमने कर दिया. ठीक है, चलिए, ये था फर्स्ट क्वेश्चन. विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन फॉर होमवर्क. ओके, लास्ट लेक्चर का होमवर्क मुझे कई स्टूडेंट्स ने क्या वेट चेक करा लिया है. अदर स्टूडेंट्स भी आई वुड सजेस्ट कि जल्दी से जल्दी करें, समर वेकेशंस का यूज करें, कोरोना वेकेशंस का यूज करें एक्चुअली आई शुड से. ओके, ब्लू पेन से लिखते हैं होमवर्क. सो लेट मी राइट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ होमवर्क. सी, 3 tan theta plus 5, not 5, 3 tan theta plus cot theta. 3 tan theta plus cot theta is equal to 5 cosec theta. See, you are given 3 tan theta plus cot theta is equal to 5 times cosec theta. Okay, and you have to calculate the value of theta here. Okay, find theta. Now students, जब आप इसको सॉल्व करोगे एक्सप्रेशन को, ठीक है, आप दिमाग लगा के सॉल्व करना है इसको जब सॉल्व करोगे तो ये किसी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, या आपको करना ऐसे है कि किसी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है ना, पूरा एक्सप्रेशन दिमाग ऐसे लगाना है. फिर क्या होगा कि जो राइट हैंड साइड में बचेगा वो एक ऐसा रेशियो बचेगा जिसकी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके ही रेशियोज में आने वाला, इनके ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा वो. ठीक है, तो फिर आप यहाँ से थीटा की वैल्यू भी बता सकते हैं. ठीक है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है देखा जाए तो, है ना, हम थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं. 11th क्लास में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. क्लियर. चलिए, ये क्वेश्चन हुआ आपका होमवर्क का. नाउ एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ इसके बाद. ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडेज क्लास. ओके, ये क्वेश्चन तो आपका होमवर्क का हो गया, ये आप कर लेना होमवर्क में. क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है.
see, suppose you are given the value of sec theta. See, we are given the value of sec theta. The value of sec theta is what? X plus 1 by 4x. X plus 1 by 4x. And we have to prove that sec theta plus tan theta is what? Okay. Prove that sec theta plus tan theta is either 2x or 1 by 2x. It's a very nice question. Okay, we will be using the quadratic equation, because I am getting the two values now. Two values will come when a quadratic equation is solved. See, quadratic equation is your chapter number 4. Okay, but I'll be giving you the idea of solving. Okay, see, now given result was sec theta is x plus 1 by 4x. Now if I square in both the sides, okay, so let me square both the sides. Now आपके दिमाग में आ रहा होगा सर स्क्वायर ही क्यों कर रहे हैं? सी, हमको tan थीटा चाहिए। अब हमारे पास sec थीटा तो है, हमको tan थीटा चाहिए, और tan थीटा कैसे मिलेगा? जबकि मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा, और आइडेंटिटी में मुझे आइडेंटिटी यूज करने के लिए मुझे चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो मैं पहले sec स्क्वायर थीटा तो लाऊं, इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए sec स्क्वायर थीटा x plus 1 upon 4x whole square. Okay, now students, sec square theta, what it's going to be? If I open this bracket a plus b whole square, what I'm gonna get? I'm gonna get a square plus b square, that means 1 upon 4x whole square, 1 upon 4x whole square, plus 2ab, that means 2 into x into 1 upon 4x. Okay, see, this is going to be sec square theta is equal to x square plus, it's 1 upon 16 x square plus see, this x gets cancelled out, and 2 upon 4 is going to be what? 1 upon 2. This 2 and 4 are cancelled out. Okay, see, sec square theta is this, so let me convert it into tan theta, because I know 1 plus tan square theta is always sec square theta. Okay, so 1 plus tan square theta is what? X square plus 1 upon 16 x square plus half. Okay, see, what is the value of tan theta? Tan square theta first. See, tan square theta is going to be x square. See, this plus 1 when goes in the right hand side, it will be subtracted from half, and half minus 1 is going to be what? Minus half. So it's going to be minus half plus 1 upon 16 x square. What I did, I just transpose the plus 1 in the right hand side. Okay, चलिए बात करते हैं आगे क्या बनेगा ये। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो ये है वैल्यू tan स्क्वायर थीटा की, बट हमको क्या चाहिए? हमको तो tan थीटा चाहिए। अब tan थीटा का मतलब है कि यहाँ राइट हैंड साइड में अगर होल स्क्वायर बन जाए तो मजा आता है। अगर राइट हैंड साइड में होल स्क्वायर बन जाए तो मुझे tan थीटा की एक वैल्यू मिल जाए, ठीक है ना। फिर मैं उसको sec थीटा में ऐड कर दूंगा। जो मेरा गिवन रिजल्ट था ना, क्या था गिवन रिजल्ट? ये, इसको मैंने रिजल्ट नंबर 1 बोल रहा है मान लो। तो अब मैं कोशिश करता हूँ इसको होल स्क्वायर बनाने की, ठीक है। चलिए इसको अपन होल स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो, ये आइडेंटिटी एक्चुअली बन रही है, बस छोटा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए, छोटा सा ऑब्जर्वेशन। देखो, ये x का स्क्वायर है। अगर इस हाफ को मैं ऐसे लिखूं 2 टाइम्स, सी, एक बार मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, a स्क्वायर, ठीक है ना, और ये जो 1 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर है, मैंने इसको लिख लिया 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर। ओके, सी, वी हैव a स्क्वायर एज x स्क्वायर, b स्क्वायर एज 1 अपॉन 4x होल स्क्वायर। ओके, एंड इन द middle term what should be, for making the identity of a square minus 2ab plus b square, it should be minus 2ab. Okay, so I write minus 2. Okay, now value of a should be what? X, and value of b should be what? 1 upon 4x. Okay, now you can verify. If you solve this middle term, you will be getting minus half only. x से x कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर वाला तो माइनस हाफ ही मिलेगा आपको, ठीक है।
तो अब देखो आइडेंटिटी बन गई, ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की, ठीक है। चलिए यहाँ मैंने एक आइडेंटिटी यूज करी थी तो उसके बारे में लिख दें राइट हैंड साइड में। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी यूज करी थी कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो लिख देते हैं इस आइडेंटिटी को, जो यूज करते चल रहे हैं उसको साइड में आप शो कर दें कि हाँ भाई हमने ये रिजल्ट यूज करा है ना। नाउ इसके आगे वाला पार्ट देखें अब आप। सी यहाँ आइडेंटिटी फॉर्म हो चुकी है, द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज सी एक्स माइनस 1/4x होल स्क्वायर। आप चेक कर लें, इसका एक्सपांशन जो है वो नीचे वाली टर्म होने वाली है a माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ अब मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो टेन थीटा क्या होने वाला है, टेन थीटा होने वाला है प्लस माइनस। देखो प्लस माइनस लगाना बहुत जरूरी है जब भी आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है ना। तो प्लस माइनस दो साइन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सी वैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे वहां भी आपको मिलेगा और आपको बताया भी गया होगा कि इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 द वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी बोथ प्लस माइनस 5. Okay, so I am taking the two signs plus minus here. So what I will be getting here, x minus 1/4x whole square. See, square and square roots are get cancelled out. So the value of tan theta is going to be plus minus, and in the bracket it's x minus 1/4x. Now student, ये मिल गया अपने को equation number 2. Now we have sec theta, we have tan theta. Once we will take the positive sign and we get the value of sec theta plus tan theta, and in the second time we will be taking the negative sign. Okay, see, first of all I am taking positive sign here, taking plus sign and adding, taking plus sign and I am adding equation number 1 and equation number 2. Okay, वैसे तो इसमें क्लियर ही है। अब जब हम sec थीटा प्लस tan थीटा निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर रहे हैं। तो देखो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा sec थीटा प्लस tan थीटा, एक मिनट, मुझे मिलेगा sec थीटा प्लस tan थीटा कितना, सी sec थीटा प्लस tan थीटा मिलेगा sec थीटा प्लस tan थीटा मिलेगा x प्लस सी x प्लस 1/4x. okay, sec theta, this is the value of sec theta and I am taking plus sign. okay, so it's going to be plus x minus 1/4x because I am taking plus sign of tan theta. okay, so if I add these two bracket, okay, I am gonna get sec theta plus tan theta. The value is what, see, x and x they will get added, it is 2x, and 1/4x and minus 1/4x will get cancelled out. So the value of sec theta plus tan theta is what, 2x. okay, now when I take negative sign, taking minus sign, अगर मैं माइनस साइन लूंगा मतलब मैं tan theta की वैल्यू क्या लूंगा, माइनस ऑफ x minus 1/4x. so what I will be getting in that case I will be getting sec theta plus tan theta as, see, x plus 1/4x. this is the value of sec theta in the equation number 1. okay, you can observe. now tan theta I am taking the negative value now. okay, negative sign. so see this negative sign will change the x as minus x. जब मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो tan थीटा के अंदर, tan थीटा के बाद तो माइनस है, तो ये क्या बनेगा, इसको माइनस का x बना देगा और इसको प्लस का 4x बना देगा. ओके, और जैसे ही मैं ब्रैकेट हटा के इस चीज को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है sec थीटा प्लस tan थीटा. देखो x से x कैंसिल हो जाएगा इस बार, जैसे ही ब्रैकेट मैं ओपन करूंगा x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/4x एंड 1/4x ऐड हो जाएंगे, इट्स 1/4x प्लस 1/4x. इसको यहीं खत्म करते हैं. 1/4x plus 1/4x बोले तो 2/4x. okay, and after solving what I am getting 1/2x. so this is going to be the value of sec theta plus tan theta
when I took the negative sign. Okay, so this is my value of sec theta plus tan theta. So see, we have to prove that sec theta plus tan theta is either 2x or 1/2x. We have got the results. Okay, let us come on the next question. See, third question. See, this is, let me take the black ink only. Yes, in the third question, suppose this result is given, a sin theta plus b cos theta is equal to c. Okay, and you have to show that, आपको दिखाना है, यहाँ पर आपको प्रूव करके लाना है, show that a cos theta minus b sin theta, a cos theta minus b sin theta is plus minus square root of a square plus b square minus c square. ये आपको रिजल्ट जो है वो लाके दिखाना है. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. सी स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप एक चीज याद रखें, आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा गिवन है. जैसे ए बी सी की यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकती है. मैं जो क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ वो क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है जिसके अंदर ए बी सी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व हो रहा है. बाकी आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ए की जगह 3 sin थीटा और बी की जगह 5 cos थीटा. मैं ऐसा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा. ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. कैसे करें? ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा दे रखा है, ठीक है, सी के इक्वल, और वैल्यू निकालनी है ए cos थीटा माइनस बी sin थीटा की. तो हाउ टू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन? See students, first of all I am writing the given result. See, we are given a sin theta plus b cos theta is equal to c. Now if I square in the both the sides, what I will get? I will be getting a sin theta plus b cos theta and whole square, and it is going to be equal to c square. Okay, now expanding the bracket, what I will be getting a square sin square theta plus 2ab sin theta cos theta. Okay, I am just expanding a plus b whole square. Okay, identity. So it's b square cos square theta and this is going to be equal to c square. Now students, यहाँ पर दिमाग लगाने का टाइम आया. हमको बनाना है a cos थीटा माइनस b sin थीटा. मतलब a के साथ देखो cos थीटा का कोफिशिएंट बनने वाला है एक्चुअली ये. ठीक है, तो हम ऐसा कुछ करें कि a के साथ cos थीटा है और a के साथ cos थीटा कब आएगा? जब ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर में चेंज होगा. तो यस, इस तरीके से हम सोचते हैं कि sin स्क्वायर को यहाँ पर cos स्क्वायर में चेंज करना बेटर है. तो मैंने sin स्क्वायर को चेंज कर दिया cos स्क्वायर में. ठीक है, नाउ इसको अभी कुछ नहीं छेड़ते हैं अपन. 2ab sin थीटा cos थीटा देखते हैं इसका क्या होता है. ओके, और देखो b के साथ आ रहा है sin थीटा, जो हमारा रिजल्ट है उसमें b के साथ आ रहा है sin थीटा. तो क्यों ना मैं इस b cos स्क्वायर को भी sin स्क्वायर में चेंज कर लूं, और ये मैं कर सकता हूं. हमने आइडेंटिटी नंबर 1 के सब रिजल्ट्स में देखा था, sin स्क्वायर जो है वो 1 माइनस cos स्क्वायर है और cos स्क्वायर जो है वो 1 माइनस sin स्क्वायर है. क्लियर? चलिए, नाउ इफ आई मल्टीप्लाई इनसाइड, सो इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस it is 2ab sin theta into cos theta plus b square minus b square sin square theta, and this value is going to be equal to c square. Okay, now students, just observe, we want a cos theta minus b sin theta. a cos theta minus b sin theta की वैल्यू मुझे जब भी मिल सकती है जबकि मैं a cos थीटा माइनस b sin थीटा. अच्छा, राइट हैंड साइड को आप देखो तो वहां राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट है, मतलब a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर बन जाए तो मजा आ जाए. a cos थीटा माइनस b sin थीटा का अगर होल स्क्वायर बन जाए तो हम क्यों ना आइडेंटिटी बना ले, और यहाँ हम आइडेंटिटी बना भी सकते हैं. ठीक है, एक बार ऑब्जर्व करें अच्छे से. देखिए, माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा और माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर. अगर मैं इन तीन टर्म्स में से -1 कॉमन ले लूं, ठीक है, और बाकी की टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मैं क्या कर रहा हूं, चलो मैं एक बार एक स्टेप और बढ़ेगा, कोई बात नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए. माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा पहले लिखा, ठीक है, फिर मैंने लिख लिया 2ab sin थीटा cos थीटा, 2ab sin थीटा cos थीटा
और उसके बाद मैंने लिखा इसको, देखो माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को, और बाकी की टर्म्स को मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो क्या बनेगा यहाँ पर सी स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है, और माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स लेट मी टेक माइनस कॉमन इन द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ही मैं -1 कॉमन लेता हूं कहां पर, लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखो सबके साइन बदल जाएंगे, साइन तो बदल ही जाएंगे, साथ साथ आइडेंटिटी भी बनती दिखेगी आपको। देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो माइनस है ये भी काय में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन बदल जाएंगे, आपने माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। सी ये बन गया। नाउ जो राइट हैंड साइड है, अगर राइट हैंड साइड में भी मैं माइनस कॉमन लेके इस माइनस से उड़ा दूं, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में भी मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो देखो ये माइनस का ए स्क्वायर अब प्लस का ए स्क्वायर बन गया, माइनस का बी स्क्वायर अब प्लस का बी स्क्वायर बन गया, और जो सी स्क्वायर प्लस का था वो अब माइनस का बन चुका है। बोलो क्लियर? नाउ इस माइनस से ये माइनस उड़ा दिया, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये बन चुका है होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, ठीक है, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, इस फॉर्म में लिख लिया, कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए इसमें भी, ठीक है ना। और ये है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में वही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, नाउ स्टूडेंट देखो आइडेंटिटी बन चुकी है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गई आइडेंटिटी। ये पूरा ए कॉस थीटा ए की तरह ट्रीट करो, बी कॉस थीटा को, बी साइन थीटा को आप बी की तरह ट्रीट करो, ठीक है ना। तो इन दिस वे ये आइडेंटिटी बन गई किसकी, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा के होल स्क्वायर की। आप देख लो इसको एक्सपांड करके ये ऊपर वाला रिजल्ट मिल जाएगा आपको, किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। तो यहां से जो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा आया वो किसके इक्वल आया, वो आया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, hence our result is proved. Okay, it's a very nice question. Okay, and question is important. अच्छा एक होमवर्क दे देते हैं साथ में, बिल्कुल इससे मिलता जुलता होमवर्क, ठीक है, इससे मिलता जुलता होमवर्क। सी सपोज 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा नहीं, आपको गिवन है 5 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा। एक मिनट, सी एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं, इससे मिलता जुलता आपको। यू आर गिवन 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, 3 साइन थीटा प्लस 5 cos theta is equal to 5. Okay, and you have to calculate the value of 5 sin theta minus 3 cos theta, and question is in the form of prove that. Okay, prove that ऐसा भी आ सकता है कि find the value, एक ही बात है क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है। So you have to find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta and it is going to be equal to plus minus 3। ठीक है, ये बिल्कुल डिट्टो ही क्वेश्चन है, बस मैंने कुछ छोटे से चेंजेस करे हैं, ठीक है ना। छोटा सा चेंजेस क्या करें, ए बी सी की वैल्यू रखी है बस, है ना, कोई बड़ा काम नहीं है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सी सपोज स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस तरीके से आया, साइन थीटा प्लस कॉस, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपके लिए होमवर्क होना चाहिए, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, टाइम के हिसाब से मैं आपको ये क्वेश्चन भी होमवर्क ले दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है वो पी के इक्वल है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है वो पी के इक्वल है, ठीक है, एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा जो है वो क्यू के इक्वल है,
sec theta plus cosec theta q के इक्वल है. ओके, एंड यू हैव टू शो अ रिजल्ट या प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ q टाइम्स p स्क्वायर माइनस 1 इट्स इक्वल टू 2p. आपको रिजल्ट प्रूव करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन है. ओके, इफ sin theta plus cos theta is p, if sec theta plus cosec theta is q, prove that q times p square minus 1 is equal to 2p. Okay, see the next question is question number 4, I guess. Here see, the question is, suppose you are given the value of sec theta plus sec theta plus tan theta. Okay, either you will be given the value of sec theta plus tan theta, or you will be given the value of sec theta minus tan theta. Similarly, this type of question can be asked. You will be given either the value of cosec theta plus cot theta or cosec theta minus cot theta. See the question very carefully. Okay, see, sec theta plus tan theta, sec theta plus tan theta is, suppose you are given the numerical value, and numerical value can be anything, but I am taking the standard result. Okay, let me take the value is p. Okay, sec theta plus tan theta is p, and with given this expression we can calculate values of all trigonometric ratios of theta actually. Okay, in this particular question we have to prove that sin theta. In this particular question what I am going to solve, because see, I am going to tell you the all questions that can be related to this concept, that can be formed using this concept. Okay, see, sin theta is you have to prove that sin theta is p square minus 1 upon p square plus 1. Okay, sec theta plus tan theta is equal to p. This result is given and we have to prove this result. Okay, or show that. मैं यहाँ लिख देता हूँ, show that. दोबारा लिख देते हैं, show that sin theta is p square minus 1 upon p square plus 1. Sec theta plus tan theta is given to you p, and you have to show that sin theta is equal to p square minus 1 upon p square plus 1. Okay, now students, we will solve this question. See, how we start the question. Okay, because we want sin theta. Okay, see, one way of solving this, मतलब अगर ये रिजल्ट को आप एक तरीके से सॉल्व करना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं, सर हम p की जगह वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है ना, p की जगह वैल्यू पुट कर देंगे sec थीटा प्लस tan थीटा की. चलो ठीक है, वो इस क्वेश्चन में आप कर भी सकते हैं, बट मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा लिखा होता फाइंड sin थीटा. sin थीटा को प्रूफ नहीं करना होता, फाइंड sin थीटा होता, फाइंड sin थीटा इन टर्म्स ऑफ p. तब क्या करते हैं, तो फिर हम फंस जाते हैं. ठीक है ना, तो मैं आपको कराता हूँ दूसरे तरीके से. ठीक है ना, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है. सी, ये क्वेश्चन या तो बनेगा sec थीटा एंड tan थीटा की टर्म्स में, या बनेगा cosec थीटा और cot थीटा की टर्म्स में. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को. सी, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ जो गिवन है. वी आर गिवन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, एंड आई हैव सेट दिस इक्वेशन नंबर 1. नाउ स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को आप स्टार्ट करें इस आइडेंटिटी से, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, नाउ वी नो दिस इज आइडेंटिटी नंबर 2. मैंने बताया था आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है. ठीक है, नाउ इफ आई यूज हियर दिस sec a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म, सो इट विल बी a plus b or a minus b. Clear? A plus b into a minus b is equals to 1. Now from equation number 1, can I substitute value? So sec theta plus tan theta is what? It's p into sec theta minus tan theta, and it's equal to 1. Okay, so the value of sec theta
माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वॉट 1/p. इट्स योर इक्वेशन नंबर 2. नाउ स्टूडेंट्स, अगर एक बार आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारे पास है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ठीक है ना, एक वेरिएबल सेक थीटा एक वेरिएबल टेन थीटा. और हमने चैप्टर नंबर 3 में यही तो करा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो इक्वेशंस को सॉल्व ही तो करा है. ऐड करते थे इन दोनों इक्वेशंस को, हमको डायरेक्टली सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, नाउ लेट मी ऐड दीज टू इक्वेशंस. इक्वेशन नंबर 1 plus equation number 2. When I will be adding this equation, see tan theta will get cancelled out, sec theta plus sec theta will become 2 times sec theta. Okay, यहाँ लिखता हूँ मैं इसको 2 times sec theta. So 2 times sec theta is going to be equal what 1 plus 1 by p, p plus 1 by p. Okay, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करा तो ये बनेगा p plus 1 by p. नाउ यहाँ से sec theta कितना बना, सी ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा हाफ. और अगर मैं p प्लस 1 अपॉन पी को सॉल्व करूँ तो p एलसीएम आएगा, ये बनेगा p स्क्वायर प्लस 1. चलिए सेक थीटा निकल गया. अब अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से निकालना इट्स नॉट अ बिग डील. ओके, आइदर यू कैन यूज आइडेंटिटी और यू कैन गो विद द ट्राइंगल. ओके, बट अब तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे. ठीक है, सेक थीटा हमारे पास है, मतलब कॉस थीटा हमारे पास है. कॉस थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल. ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप. अब हम लोग लास्ट फेज में है ट्रिग्नोमेट्री के, तो कुछ स्टेप तो हम डायरेक्ट कर ही सकते हैं. कॉस थीटा कितना हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स कर दो, 2p बाय पी स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया कॉस थीटा. नाउ कॉस थीटा ये है तो साइन थीटा कितना होना चाहिए, साइन थीटा होगा आइडेंटिटी से, हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है. ठीक है, तो और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है. सो आई एम यूजिंग दैट साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, identity number 2. Okay, so if I just replace this value of cos theta, see I have to take the square, so 2p by p square plus 1 whole square. बोलो, no problem. Now only calculation is the remaining thing. आपको बस इसको calculation आनी चाहिए. See this square is of numerator and denominator both. न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है. ठीक है, तो सी मैं एलसीएम ले रहा हूँ पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये जो 2p और p स्क्वायर प्लस 1, 2p बाय p स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर है. ठीक है ना, तो मैंने मान लो स्क्वायर्स को सेपरेट कर दिया, एक बार 2p पे गया स्क्वायर और एक बार p स्क्वायर प्लस 1 पे गया, और जो p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है उसको मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ बनेगा p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा न्यूमरेटर में यहाँ केवल 2p का होल स्क्वायर ही रहेगा. ठीक, ओके. नाउ इसको कैलकुलेट करना है, बस छोटा सा काम और बचा है. सो ये साइन स्क्वायर थीटा है. नाउ p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर भी आप ओपन कर सकते हैं, और अगर आप होल स्क्वायर ओपन ना करना चाहें, ठीक है, तो एक और वे बताता हूँ, आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी. ठीक है ना, तो इसमें a तो कंसिडर हो जाएगा पूरा p स्क्वायर प्लस 1 और b कंसिडर होगा 2p. तो एक बार मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ. ठीक है ना, मैं a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, सो इट्स p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p. एक बार ये दोनों चीजें ऐड होंगी. ठीक है, और ये बनेगा p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p. एक बार ये दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट होंगी. और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है भाई, यहाँ तक भी पहुंच गए. अब यहीं खत्म करेंगे इस क्वेश्चन को. ठीक है, इस स्टेज में मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा. सी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अगर हम देखें p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p, क्या ये p प्लस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल है, कोई कंफ्यूजन, ये इक्वल है p प्लस 1 के होल स्क्वायर के. सिमिलरली जो अगला वाला ब्रैकेट है ये इक्वल है p माइनस 1 के होल स्क्वायर के. ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में क्या है, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. तेरा भी स्क्वायर मेरा भी स्क्वायर. देखो न्यूमरेटर में भी स्क्वायर्स हैं, नीचे डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर्स हैं, तो क्या इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सबके ही स्क्वायर्स हो रहे हैं. या तो अगर सबके ही स्क्वायर हो रहे हैं तो मैं क्यों ना इसको होल स्क्वायर बना लूँ. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, p प्लस 1 इंटू p माइनस 1
अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज प्लस माइनस, एंड वैसे रिजल्ट में आपने प्लस माइनस नहीं लगा रखा है तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं इसको, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल, ओके, पी। सो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, आप इस तरीके से समझ लो कि मैंने इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को कट कर दिया, ठीक है ना। बात एक ही है, स्क्वायर को वहाँ लेंगे तो प्लस माइनस बनेगा और स्क्वायर रूट में जाएगा, बट हाँ हमको क्योंकि रिजल्ट प्रूफ करना है तो रिजल्ट के अंदर हम ये दिखा सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है। आप इसको ऐसे समझ लो, अभी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, या टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, ओके। वैल्यू क्या आने वाली है, पी प्लस 1 इंटू पी माइनस 1, ये अगेन पी स्क्वायर माइनस 1 ही बनेगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, पी प्लस 1 इंटू पी माइनस 1, अगेन आइडेंटिटी बन जाएगी पी स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है पी स्क्वायर प्लस 1। फाइनली वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने बताया क्वेश्चन जिसके अंदर हमने p की कोई वैल्यू नहीं ली, बट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए और आपसे पूछ ले कि sin थीटा बताओ या cos थीटा बताओ। देखो cos थीटा अगर पूछा होता तो cos थीटा तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, इस स्टेप में ही हम cos थीटा तो निकाल चुके हैं, ठीक है। cos थीटा हम बहुत पहले निकाल चुके थे, अब हमने क्या निकाला है, अब हमने sin थीटा निकाला है, क्लियर। चलिए आई होप समझ में आया होगा ये। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर लेक्चर एंड करते हैं। See, I guess from my side all questions that I solve in class is covered, okay. Now let me give you homework, and with the homework we will be finishing this class. See, homework question, हालांकि मैंने बीच में भी एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, ये कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप इसको भी प्रैक्टिस करें, करने की कोशिश करें, ठीक है। See, suppose cot theta plus tan theta is x. You are given that cot theta plus tan theta is x, and also you are given that sec theta minus cos theta is y. Okay. See, if cot theta plus tan theta is x and sec theta minus cos theta, आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है? देखो cot theta और tan theta रेसिप्रोकल है, sec theta और cos theta रेसिप्रोकल है, ठीक है, इज इक्वल टू वाई। देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्टली अलजेब्रा से रिलेटेड है, ठीक है। आपकी कैलकुलेशंस जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो। सी, आपको प्रूव करना है, शो दैट एक्स स्क्वायर वाई होल रेज टू द पावर 2/3 माइनस xy square and again whole raised to the power 2/3 and this result is equal to 1. okay, you have to prove this. so students, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इट्स 2/3, एक बार मैं इसको प्रॉपर बना दूं, 2/3 ये होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। एक और होमवर्क का क्वेश्चन जो आपको करना चाहिए वो है सी, ये सिंपल क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, वही थीटा की वैल्यू निकालनी है। यू आर गिवन दैट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 3 साइन थीटा कॉस थीटा, इज 3 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड यू हैव टू कैलकुलेट tan थीटा, फाइंड tan थीटा। आपको tan थीटा की वैल्यू बतानी है, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन में tan थीटा की, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप कुछ एक पहला स्टेप में हिंट दे रहा हूँ उसमें। पहला स्टेप ऐसा सोचना, किसी नंबर से डिवाइड करना, किसी नंबर से क्या करना, डिवाइड करना दोनों साइड, ठीक है, ताकि ये पूरा जो है वो कन्वर्ट हो जाए सेक और tan की टर्म्स में, ठीक है। फिर सेक की टर्म्स में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो सेक स्क्वायर को आप 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये पूरी जो इक्वेशन है ये एक tan थीटा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, tan थीटा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यानी मतलब tan थीटा की दो वैल्यूज आएगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आप ट्राई करना, क्वेश्चन को हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपने जो पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ी थी उस तरीके से उसको स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन फॉर यू, and with this note we will be finishing trigonometry. okay, now we will have
new chapter. See, this time the chapter is completed. See, right now the chapter is completed from my side. Okay, and you have to do practice. You have to do enough practice for ट्रिगोनोमेट्री. ओके, आपको काफी प्रैक्टिस कर लेनी है इस पर, ताकि आप बोर्ड के लिए भी और ओलंपियाड के लिए भी अब यहाँ तक, जब आपने अगर यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए, इसके साथ मेरी जो प्रैक्टिस शीट 3 आपको मिल चुकी है, 4 और 5 वो भी आप कर लेंगे, तो यू विल बी रेडी टू फेस एनी बोर्ड एग्जाम. ओके, any competitive exam, okay, up to 10th level, you should have no problem, okay, in trigonometry. Now the only thing which I need is just practice. आप practice करें, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी. ठीक है, so see you with the next chapter. Okay, this is actually suspense. What should be the next chapter? Okay, so we will be starting the next chapter soon. Till then, take care. Bye bye. Enjoy.